Welcome to ninth grade. You are a grown up kid now, right? Before starting with all the tips and tricks, I want you to tell you why you should watch this video. I myself got 98% in ninth standard. At that time, I was moved to a new school and there I faced a completely different system of learning. 8th क्लास तक कैसे पढ़ाई हो रही थी? चैप्टर पढ़ा, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए, वही एग्जाम में आए, उनको याद किया और पेपर हो गया। दैट्स इट। लेकिन अब क्या हुआ कि टीचर्स अपने आप क्वेश्चंस बना के डाल रहे हैं एग्जाम में। वो हमें चैप्टर्स रीड नहीं करवा रहे, वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं। एंड आई वाज यूज्ड टू रीडिंग अ चैप्टर एंड डूइंग द बैक एक्सरसाइज. That was the point where I realized that I need to change something. The way I used to study till my class 8 will not be working with me right now when I'm in ninth class. Then I started to change my learning habits. I started to read chapters. I started to learn those concepts. First time ever, I started making notes. I would write down everything that teacher would tell us in the class. Those were not perfect notes, of course, but that was the time I started to do something new. I started to writing down while teacher was teaching. हमारे टीचर्स सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं करवाते थे, वो हमें खुद क्वेश्चंस देते थे कि these are the questions, you have to find the answers from your book and then write it down. And I think that was the best exercise because it helped me not just in class 9th but also made a habit of reading chapters which helped me in class 10th as well. और जो हम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखते थे, that actually became our study material for our exams. हमने पूरे चैप्टर्स पढ़े, हर क्वेश्चन के लिए एक बढ़िया सा आंसर ढूंढा उस चैप्टर से, and this way we covered most of the topics which are given in a book. During this process, I evolved from a student who merely relied on ratification of topics to a student who was more wiser and focused more on understanding the concepts. And this transition was much needed for next class exams, which were class 10th board exams. Here in ninth standard, we are going to prepare ourselves for that competition which we are going to face in next class, that is class 10th, when you will not be competing with those 30 students of your class, but you will have to compete with the students of whole of the country, right? And there you will not know which questions are going to come because the questions will be of the choice of the board. You will not have to learn those questions which are given in your back exercise. So this is the time when we are going to change our habits. We are going to change our learning process, which will help us to do better in next class as well. अगर आपने यही से ये टिप्स और ट्रिक्स सीख ली तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब वो बात नहीं रही कि आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, 2-4 क्वेश्चंस करने हैं, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे. दैट इज ओवर नाउ. अब प्रोसेस चेंज होने जा रहा है. And the best thing is, you know it right now, you just need to practice it more and more. So let's begin with the tips which will help you to improve your learning style. First thing which I want to tell you is start reading chapters. अभी तक जब तक आप 8th क्लास में थे आपने चैप्टर्स इतने नहीं पढ़े, एक बार रीडिंग होती थी क्लास में, that's it. Now you have to read your chapters not once, not twice, but as many times as you can. Because इससे आपकी reading habit बनेगी. And if you develop this habit right now, it will help you in your future classes. और सेकेंड थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज अलोंगसाइड योर रेफरेंस बुक्स, आपको स्कूल वालों ने कुछ बुक्स लगवाई होंगी राइट, हर सब्जेक्ट की, लेकिन उनके अलावा आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है. अगर तो आपके स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटीज ही हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बट इफ नॉट तो आपको एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया होता. वहां पे आपको जस्ट टॉपिक्स होते हैं और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं. दैट्स वाई स्कूल्स में रेफरेंस बुक्स लगती हैं, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके. जब आपने रेफरेंस बुक्स पढ़ ली, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटीज रीड करनी है, बिकॉज एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, और 10th क्लास में हम एनसीईआरटीज पढ़ेंगे. अगर अभी से आपको वो हैबिट हो गई एनसीईआरटीज रीड करने की, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर नेक्स्ट क्लास. और थर्ड पॉइंट है मेकिंग नोट्स. जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मैंने खुद 9th क्लास में पहली बार नोट्स बनाने शुरू किए थे. I used to write what teacher used to tell us because teachers books नहीं पढ़ा रहे. This I am basically talking about science and SST. राइट, इन सब्जेक्ट्स में टीचर्स ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने शुरू कर दिए, एसएसटी में स्टोरीज बना के सुनाना शुरू कर दिया. उस चीजों के मैंने साथ साथ में नोट्स बनाए, नॉट वेरी नाइस वंस, नॉट डिटेल्ड वंस, बट जो टीचर बोलते थे आई यूज्ड टू राइट अ लिटिल बिट ऑफ दैट. और ये नोट्स बनाने का सही मेथड नहीं है, आई वुड से इफ यू स्टार्ट राइटिंग अलोंग विद योर टीचर तो उससे आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा, बट दोज नोट्स वॉन्ट वर्क फॉर यू इन योर एग्जाम्स, राइट. उससे आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे. अब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो परफेक्ट काइंड ऑफ नोट्स आपको बनाने हैं वो ये है कि
आप जब चैप्टर रीड कर रहे हैं तो while reading the chapter make a habit of making questions. Let me be very true with you. In my class 10th मेरी books थी ना जो that were completely ruined by writing so many questions in on every page with a pencil of course. अब आपको वो चीज अभी से करनी है and that actually helped me a lot because मेरे पास हर पैराग्राफ में से 2 और 3 क्वेश्चंस थी. मेरे पास इतने क्वेश्चंस थे जो मैंने खुद बनाए कि दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. अब जब आपके पास इतने क्वेश्चंस होंगे तो इज देयर एनी स्कोप कि आपके एग्जाम में कुछ बाहर से आ जाएगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट. क्लास 9th और 10th इज वेरी इजी. आपको जस्ट अपनी सिलेबस पे स्टिक करना होता है. यू जस्ट हैव टू फोकस on a syllabus and moreover do that syllabus just from your books. You don't have to go for many sources. Okay, अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? आप फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर रीड कर रहे हो, उस चैप्टर में जो भी टॉपिक है उसको उसमें से आप क्वेश्चंस फाइंड करो. फॉर एग्जाम्पल साइंस में आपका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग. अब उस टॉपिक में ना आपकी जो बुक है उसमें जितने भी पेजेस में वो चैप्टर कवर किया गया है आपको हर टॉपिक से कोई क्वेश्चन फाइंड करना है. ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, चाहे वो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हो. व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एन एटम. आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है ना आप उसको लिख लो. आप साइड में या फिर अगर आपको बुक खराब नहीं करनी, मैंने बाय द वे बुक खराब की थी, अगर आपको बुक खराब नहीं करनी तो आप एक पेज पे लिख सकते हो क्वेश्चन, राइट? तो आप क्वेश्चन नोट करो और उसके बाद आपकी बुक में जहां पे भी उस क्वेश्चन का आंसर है ना वहां पे उसको मार्क कर लो दैट दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब ये बनेंगे आपके नोट्स. अब इसके बाद आप एक चीज और कर सकते हो कि आप ये क्वेश्चन आंसर्स को अगर नोट कर लो, बट आई थिंक इट माइट बी अ बिट लेंथी थिंग क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं हमने, ठीक है? इस चीज में बिल्कुल भी ये नहीं करना कि 2-4 क्वेश्चंस बन के बहुत हैं. जितने आप बना सकते हो, जितने आपको लग रहा है कि दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन और दिस इज समथिंग आई नीड टू रिमेम्बर, उसको आप लिखो. अगर हो सके तो अपनी एक सेपरेट नोटबुक लगा के वो क्वेश्चन आंसर्स नोट कर लो. इफ नॉट आंसर्स यू कैन जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस ताकि आप जब उस चैप्टर को रीड करें तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर अपनी बुक में से ही देख सको और आंसर अपनी बुक में से ही मार्क करना. ओके, दीज विल वर्क एज अमेजिंग नोट्स फॉर यू आई वुड से, बिकॉज इस लेवल पे आपको वो नोट मेकिंग नहीं सीखनी है जो हम +1 +2 में सीखते हैं, ठीक है? जो हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीखते हैं या फिर कॉलेज में बनाते हैं नोट्स. दैट यू डोंट हैव टू लर्न राइट नाउ. इस टाइम पे आपको फोकस करना है कि आपकी एक रीडिंग हैबिट बने, जो मैंने पहले बताया कि बुक्स रीड करो. सेकेंडली आपकी राइटिंग हैबिट बने, इसलिए मैंने बोला कि आप क्वेश्चन आंसर्स बनाओ. दिस विल वर्क वेरी वेल फॉर यू. And fourth point which I want to emphasize on is don't just rely on back exercise questions. अब जो बैक एक्सरसाइज है ना वो आपको कवर तो करनी है बिकॉज दैट विल इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वेल एज विल हेल्प यू. ऑफ कोर्स बैक एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन दिए होते हैं लॉन्ग शॉर्ट वो सारे कवर करने हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना हमें. यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स. लेट मी टेल यू अब क्लास 8 तक कैसे हो रहा था कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर उसके 10 क्वेश्चन है, आपने वो 10 क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल लर्न किए हैं, वर्ड टू वर्ड लर्न किए हैं, फिर आप अपने एग्जाम्स में वही आंसर्स लिख रहे हैं, राइट? अब वो चीज बिल्कुल चेंज करो. अगर वो हैबिट आप अभी भी रखोगे ना तो आगे आपको बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. वो चीज अब हमें चेंज करनी है. एंड हाउ वी विल डू दिस इज कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो. अगर आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सको, एक्सप्लेन कर सको इन योर ओन वर्ड्स विदाउट लर्निंग any answer word to word. That's why concept clarity is most important thing right now. Now last but not the least point is you have to learn answer writing. Now answer writing is most important. सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, आपके जितने भी एग्जाम्स आने आगे, आप कॉलेज में जाएंगे, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, आंसर राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू लर्न. और अभी से अगर आप ये सीखना स्टार्ट कर दो, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट. Ninth class is the time when things start to change a little bit. Now, if you adapt that change, you will go very long and you will be doing very great. I'm saying this with my experience. ठीक है, अब इस क्लास में आपको आंसर राइटिंग सीखनी है. आंसर राइटिंग में कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है. हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, हाउ टू मेक योर आंसर मोर हाईलाइटेड, हाउ टू राइट योर आंसर की टीचर के लिए वो चेक करना इजी हो जाए और टीचर को पसंद आए आपका आंसर, वो ना चाहते हुए भी आपको फुल मार्क्स दे के ही जाए. एंड दिस इज वेरी क्रूशियल बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में तो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर वेरी वेल. और अगर आप अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास तक जाते जाते आपके लिए वो बहुत ही इजी हो जाएगा. उस चीज के लिए आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा. और अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया हो गई तो बिलीव मी यू गोना रॉक इन एवरी एग्जाम यू गोना गिव इन योर लाइफ.
आज भी मैं कॉलेज में हूँ, आई मीन थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज, एंड द आंसर राइटिंग skills which I learned in my 10th class, not ninth, I learned them in 10th class, help me even today, and I am scoring maximum marks in my class. Can you believe this? Answer writing skills are this much helpful for you. और अगर आपको अभी तक नहीं पता how to write answers, तो I have made 2 videos separately for science and SST. I have analyzed topper's answer sheet कि उसने कैसे answers लिखे हैं, कैसे questions attempt किए हैं. उन videos में आप easily समझ सकते हो कि कैसे हम answers को लिखें, how to write answers. वो videos से आप easily समझ सकते हो कि science और SST के लिए क्या tricks हैं जो आपको answer writing में सीखने की जरूरत है, and which will help you to get maximum marks. Of course, toppers के 100 by 100 आए हैं, and definitely there are a few things which they do differently that you are not doing. And if you want to learn answer writing skills, then here are 2 videos. Click them and watch them and learn how to write the best answer in your exam. That's it for today. See you in the next video.